reproduce both the things it can come can be seen. The adult male sponge is there and adult female sponge is there. Male is producing the sperms which can travel through water and which can get inside the female sperm, and the uh, fertilization will take place in the mesophyll. Mesophyll means the cell aggregates of the sponge, and then a zygote will be formed and embryo will be formed, and embryo will be slowly converting into a free swimming larvae. The larvae will be free swimming in the water and it will slowly develop into a young sponge. So life cycle of sponge can start one of the two ways. One way is parent sponge budding. That is to say the parent releases cells which can on their own mature into individual sponge, similar to mitosis among the single celled organism. मतलब budding भी हो सकती है sponge में. That is an asexual mode of reproduction, and some sponges, and we can say there one way of reproducing is by budding asexually, another way of reproducing is by fusion of gametes and formation of a zygote and a larvae, free swimming larvae. Then this is the way how the sponge is reproducing. The other way is the parent sponge smoking, which is the process of the male sponge releasing thousands of sperm cells out of in the sea in a thick cloud resembling a smoke. तो स्मोकिंग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज अडल्ट मेल बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज कर रहा होता है एंड वो स्मोक की तरह लगता है, एंड देन थ्रू दैट क्लाउड लाइक we can say smoke, in that the sperm liquid is there, and it, from that the eventually a female sponge catches a sperm and fertilized, as in any case of sexual reproduction. जैसे normal होता है, egg fertilize हो जाएगा female के अंदर, sperm चला जाएगा and fertilization take place होगा, और उसके बाद zygote will be formed, and the sponge zygote will convert into an embryo. It's very basic. The sponge is a diploblastic, and this means that a sponge only has two layers of tissue separated by a mesoglia. Sponge मतलब body दो layers की बनी है. ऐसे organism की body दो layers की बनी है, ectoderm और endoderm की. That is a diploblastic organism, and the larva is released. Larva formed is released out of that sponge, and the sponge larva is free swimming. It will be able to swim for 2 days, at which point it must be suitable site to settle on, और उसके बाद वो settle on हो जाएगा किसी भी एक बेड पे, सी बेड पे, किसी फ्लोर पे, कहीं पर जाकर it will settle down, and if the sponge is able to find a suitable site within that time, it will cling to it and begin to grow. वहीं grow होने लगेगी. As the sponge develop, जैसे sponge develop होगी, it grows according to its environment, which can influence its shape and size, making no two sponges physically identical. और environment की basis पे किस तरह का वहाँ पे water current है, water flows की basis पे sponge की shape, size अलग होती हैं. इसी वजह से कोई भी दो sponge एक दूसरे जैसी नहीं होती हैं, identical नहीं होती. After the sponge matures a bit more, it begins a reproductive process and the life cycle begins again. जैसे ही मैच्योर होती है दोबारा से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाती है, लाइफ साइकिल दोबारा से उनकी स्टार्ट होगा. तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर लाइफ साइकिल दे रखी है स्पॉन्ज की. इसके बाद आते हैं नाइडेरिया, और अगर हम नाइडेरिया के बारे में यहाँ देखें तो यहाँ पर इस साइट पे अवेलेबल है किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं नाइडेरिया. फाइलम नाइडेरिया है इनका. क्लासेस हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ हैं. इन फाइलम को क्लासेस को बिलोंग करते हैं नाइडेरिया फाइलम के मेंबर्स. डिफाइनिंग फीचर्स क्या है कि ये राउंड होंगे ओवरऑल बॉडी शेप अपीयरेंस में, तो इसी वजह से इनकी रेडियल सिमेट्री होगी. फ्यू टिश्यूज से लेकर कुछ इनके अंदर ऑर्गन्स, लेस फॉर्म्ड ऑर्गन्स, ऑर्गनली लिखा है बट लेस फॉर्म्ड ऑर्गन मिलते हैं, बट स्टिल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाता है, क्योंकि मेजर अमाउंट में 2 लेयर्स में इनकी बॉडी होती है. ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली कॉल्ड. देन सिंपल नर्वस सिस्टम इनके अंदर होता है.
बिल्कुल नर्व नेट, सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम जो कह सकते हैं, नर्व का नेट होता है, एक जाल जैसा होता है इनकी बॉडी में। जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा ऐसे करके है, बेस उसका अटैच्ड होता है, तो इस वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन में नर्व नेट होता है, पूरा ब्रांचेस होती हैं नर्व्स की जो कि उसके पूरे स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर में जा रही हैं। प्लस क्योंकि टेंटिकल्स इसके सेंसरी होते हैं, तो टेंटिकल्स भी एक सेंसिटिव सेल से, नाइडोब्लास्ट सेल से लाइंड होते हैं। तो हाइड्रा इस तरह से नाइडेरिया और सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है नाइडेरिया के मेंबर्स में। और देखा जाता है कि हाइड्रा अपने आप को जहाँ से वो अटैच्ड है वहाँ से डिटैच करके इट कैन मूव एंड इट कैन गो टू अनदर एरिया। बॉडी कैविटी, सिंपल नर्वस सिस्टम, लिव्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मिनिमल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर ये कम स्केलेटल स्ट्रक्चर्स कम होते हैं। देन अगर हम देखेंगे, इफ वी सी देम, इनके अदर फीचर्स देखते हैं। सी एनिमनीज इनके मेंबर्स हैं नाइडेरिया के। एंड आपको एग्जांपल डायग्राम जो दिख रहे हैं, इमेजेस जो दिख रहे हैं सी एनिमनी के, कोरल्स के इमेजेस आपको दिख रहे हैं। ये कोरल्स क्या हैं, एक तरह का ये भी नाइडेरिया है। एंड ये पूरा सी फ्लोर के ऊपर उसको कवर करके रखते हैं। जेली फिश, कितनी बिगेस्ट जेली फिश का एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है, इतनी बड़ी साइज में जेली फिश भी होती हैं। सी पेंसीज दिखा रखी हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द नाइडेरिया फाइलम ओनली। सी फैंस, सी वेव्स, these are all what, these are नाइडेरिया member. नाइडेरिया take on two basic form, polyp and medusa, ये मैंने कल भी आपको बताया था। polyp क्या होता है, is a sedentary form, sessile form, that means attached to the, fixed to the sea floor, जबकि medusa एक free living form है जो कि freely swimming करता रहता है। दो फॉर्म में नाइडेरिया आपको मिलते हैं। नाइडेरिया फाउंड इन टू बेसिक फॉर्म्स, पॉलिप दैट इज attached to on the sea floor at one place, only remain at one place, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं, ऐसे ही नाइडेरिया के जो मेंबर्स एक ही जगह पे अटैच रहते हैं पॉलिप कहते हैं, और जो मेंबर्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं उन्हें मेडुसा कहते हैं। पॉलिप इनकॉर्पोरेट सी एनिमल्स एंड द मेडुसा इनकॉर्पोरेट जेलीफिश। पॉलिप के अंदर ज़्यादातर सी एनिमनी आते हैं या फिर हाइड्रा आते हैं, एंड मेडुसा के अंदर जो आते हैं हम उनको जेलीफिशेस कहते हैं। Nidaria are living mainly in the oceans. However, there are some variation of jellyfish that are able to live in fresh water. Nidaria basically marine है, ocean और seas में मिलेंगे, but still कुछ ऐसी jellyfishes हैं जो कि fresh water में भी मिलती हैं। One area where the jellyfish lives in a lake on playa and are not carnivorous unlike most of their counterparts. एक एरिया जहाँ जेलीफिश प्लेयो नाम की जगह पर रहती हैं वो कार्निवोरस नहीं है, बाकी सब मेंबर्स कार्निवोरस हैं। नाइडेरिया आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल फाउंड, सम इन रॉक्स दैट आर डेटेड टू अबाउट 580 मिलियन ईयर अगो। सबसे पुराने जो फॉसिल्स किसी ऑर्गेनिज्म के अगर मिलते हैं तो नाइडेरिया के मिलते हैं। It is extremely rare to find one of these fossils, since the Nidaria do not form mineralized structures. And कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके फॉसिल्स नहीं मिल पाते, एक ही रीज़न हो सकता है कि वो मिनरलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनाते, उनके कोई स्केलेटन नहीं होते, इस वजह से स्केलेटन डेड रिमेन्स ही होंगे। तो डेड रिमेन्स नहीं होते तो इसलिए उन लोगों के उन कुछ मेंबर ऐसे हैं नाइडेरिया के जिनके फॉसिल्स नहीं भी मिलते। एंड जिन कोरल्स हैं, जैसे कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स और कोरल्स नाम के जो नाइडेरिया हैं उनके जो स्केलेटन्स हैं, डेड रिमेन्स हैं, वो तो हमेशा ही मिलते हैं, और इवन उनसे ग्रेट बैरियर रीफ बना है कोरल रीफ से, ठीक है, जो कि आपके कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दो कोई कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रेच है, और वो इतना बड़ा है कि इट इज़ विजिबल फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो, कोरल रीफ्स, and it is the dead remains of the fossils of the Nidaria. It is believed that their close relatives are sponges, and since they really not all too different in structures, इनके closest relative जो हैं animals हैं जो वो sponges ही हैं। इनसे पहले जो हमने पढ़े पोरीफेरा में आती हैं sponges. They are very easily damaged by people who are not careful when dealing with them, and however, despite ecosystem where these exist at home,
to enormous variety of other creatures. For example, sea anemone are home to creatures like clownfish. सी एनीमोन एक ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि क्लाउनफिश जिनके साथ में रहती हैं. जैसे हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ी थी. किसकी? वी हैव स्टडीड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द लाइकेंस. लाइकेंस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने पढ़ी है. कौन होते हैं उसके अंदर? एल्गी एंड फंगस. इसी तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं कौन? क्लाउनफिश एंड sea anemone. The ideal temperature range for these creatures 23 to 29 degrees Celsius, 73 to 83 degrees Celsius Fahrenheit. However, the personal experience, some of these creatures can live in lower water temperature. ये टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल एरियाज के टेम्परेचर मतलब 73-83 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहते हैं. बड़ी ठंडे पानी में भी रह सकते हैं. कैन लिव इन कोल्ड वाटर एज वेल. कोम जेलीज. नाइडेरिया के पहले नाइडेरिया और कोम जेलीज को एक ही फाइलम में रखा जाता था. बट अब कोम जेलीज और नाइडेरिया का फाइलम अलग कर दिया गया है. कुछ ऐसी जेली फिशेस होती हैं जिनके अंदर सीलिएटेड कोम प्लेट्स होती हैं. इनके प्रिंसिपल फीचर्स क्या हैं? ये कैरेक्टराइज्ड होती हैं 8 रोज ऑफ कोम प्लेट्स के लिए. मतलब कोम प्लेट्स का मतलब है जैसे कोम के अंदर स्पाइक्स होते हैं वैसे इनके अंदर सीलिया होती है. ये अगर कोम जेली है तो इसके अंदर 8 रोज होंगी सीलिया की. ये राउंड शेप की अगर ये है तो इसमें 8 स्लिट्स ऐसी होंगी जिसमें सीलिया होंगे ऐसे करके. अब किसी चीज में ऐसे करके ओपनिंग्स होती है तो उसे हम कोम बोलते हैं. तो ऐसी जेलीफिश जिसके अंदर सीलिया मिलते हैं 8 प्लेट्स के अंदर सीलिएटेड प्लेट्स को कोम प्लेट्स बोलते हैं. तो उन्हें कोम जेलीज बोला गया. टीनोफोरा का दूसरा नाम कोम जेलीज है क्योंकि यहाँ पर 8 रोज हैं इस तरह की सीलिएटेड रोज. इज इट क्लियर? Then single comb within a row made up of several thousand cilia. Ctenophora habitat is only marine and localized, composed of around 150 species, which is more is poorly known, and most of have coloblast cells secreting a sticky substance catching animals to prey. Capture symmetry is biradial, but in animals, internal canal characteristic position and tentacles can change. Diploblastic, but in adulthood, the middle layer contains cells and the derivation these middle layer cells are controversy. Ectodermal, endodermal, affecting its diploblastic or triploblastic. मतलब ये दोनों कोई कुछ साइंटिस्ट इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसीडर करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसीडर करते हैं. ये बताया गया है. एंड क्योंकि एडल्ट्स में किसी एडल्ट्स में देखा जाता है मिडिल लेयर के अंदर सेल्स भी देखे जाते हैं. एंड मिडिल लेयर ऑल्दो किस ओरिजिन से आई, कहाँ से बनी, ये कंट्रोवर्शियल है. तो जो लोग इसको समझते हैं कि ये मिडिल लेयर इन्हीं दोनों लेयर में से किसी से बनी है तो वो उसे डिप्लोप्लास्टिक कंसीडर करते हैं. इनके अंदर कंप्लीट गट होता है. दैट मीन्स इनका माउथ अलग है, एनल पोर अलग है. एनल पोर अलग है, माउथ अलग है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है. पर हाइड्रा में ऐसा नहीं था. हाइड्रा में जिस ऊपर जहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं तो एक ही पोर होता है, सिंगल पोर होता है यहाँ पे माउथ. इसी से एंट्री होती है चीजों की और इसी से ही एग्जिट होती है, बाहर भी इसी से आता है, इसी पोर से. पर कोम जेलीज में ऐसा नहीं होता. कोम जेलीज में अपोजिट एंड्स पे एक यहाँ पर पोर होता है और एक यहाँ पर. दोनों पोर्स अलग अलग है, माउथ अलग है, एनल अलग है. तो इस तरह चीज को कंप्लीट गट बोलते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो विच ऑर्गेनिजम्स was the first to can have a complete digestive system, तो आंसर होगा टीनोफोरास, कोम जेलीज. ये खाने की हैबिट में कैसे हैं? कार्निवोरस है और ये प्लैंक्टोनिक एनिमल्स, प्लैंक्टॉन्स पे यानी क्राइसोफाइट्स जो हमने प्रोटोजोआ पढ़े उनको खाती है. डाइवर्सिटी क्या है? टीनोफोरा फाइलम आर कंपोज्ड ऑफ 150 स्पीशीज
Previously derived in two classes, Tentaculata and Muda, दो classes की थी ये, and Ctenophora diversity still uncertain, can't be divided into subgroups. Now नीचे कुछ थ्री मोस्ट कॉमन ऑर्डर्स दिखा रखे हैं जेलीज के, लोबाटा, साइड्रिपीडा, प्लूरोब्रैकिया, ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो यहाँ पर दिखा रखे हैं कोम जेलीज के। डायग्राम्स में आप देख सकते हो कोम प्लेट्स हैं जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं और ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। ये इस प्रॉपर्टी को कि लाइट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर लाइट जलती है। लाइट जैसे जुगनू आपने देखा होगा, फायर फ्लाई, उसके अंदर भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है। दैट मींस इट आल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट बाय सम केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब कोम जेलीज है। देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है लास्ट में, टीनोफोरा luminescence or bioluminescence strikingly beautiful shimmering rainbow pattern is produced by diffraction of light passing between the cilia। जब cilia के बीच में से लाइट जाती है तो वहाँ डिफ्रैक्शन होती है और जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है। इन कॉन्ट्रास्ट कुछ टीनोफोर ऐसे होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं और कि वो अपनी लाइट को डार्कनेस में दिखा सकते हैं खुद के अंदर से प्रोड्यूस करके। एक टीनोफोरा तो ऊपर वाला पॉइंट है, एक टीनोफोरा तो लाइट ऑलरेडी जो प्रेजेंट होगी उसको डिफ्रैक्ट करके शो करेगा, सीलिया की मदद से डिफ्रैक्ट करेगा और फिर वो लाइट शो करेगा। बट दूसरी टीनोफोर बायोल्यूमिनेसेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टीनोफोरा जो ऊपर वाली चीज है वो तो ल्यूमिनस चीज, ल्यूमिनेसेंट चीज है, नीचे वाली बायोल्यूमिनेसेंट चीज है कि खुद अपना प्रोड्यूस कर रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है। मिथ क्या है? ऑल comb jelly is luminescent and they make the color of rainbow. Nearly all comb jellies phylum Ctenophora can make light, but the best known species Pleurobrachia नाम की species सबसे बेस्ट है जो luminescence करती हैं। Because ctenophores can produce brilliant colors from diffraction through their comb plate, people get the impression that they are seeing bioluminescence. Even marine biology books sometimes mention the red luminescence. Bioluminescence is a subset of chemiluminescence where the light producing chemical reaction occur inside an organism। किसी organism के अंदर light producing reaction हो रहा होता है, ऐसा कुछ कॉम जेलीज में भी देखा जाता है। टीनोफोरा की लाइफ साइकिल अगर देखें, इट इज अ सैंपल लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ द टीनोफोरा स्पीशीज आर हर्माफ्रोडाइटिक, दोनों सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गेनिजम्स में सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। एंड देन स्पर्म और एग, सिंगल टीनोफोर दोनों चीज बना लेती है, स्पर्म और एग। एग एंड स्पर्म आर टिपिकली रिलीज्ड डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर देती है माउथ एंड द एग थ्रू द माउथ, माउथ की तरफ से एग और स्पर्म रिलीज कर देती है। एंड द एग्स आर फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड डेवलप, बाहर ही पानी में ही वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं और डेवलप होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल बट इट्स नॉट क्लियरली हाउ दैट द हैपेंस। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है पर पता नहीं वो कैसे होती है। रिप्रेजेंटेटिव टाइप प्लूरोबैकिया, कोम प्लेट्स, मतलब एक मेंबर अगर हम इसे पढ़ लें तो हमें कोम जेली का पूरा समझ में आ जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बोलते हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर प्लूरोब्रैकिया को समझाया गया है। प्लूरोब्रैकिया जो कि सबसे ज्यादा फीचर शो करता है कोम जेलीज की। कोम प्लेट्स इसमें ईच कोम प्लेट्स रो कंसिस्ट इन ट्रांसवर्स प्लेट ऑफ लॉन्ग फ्यूज सीलिया कॉल्ड कोम प्लेट्स। मतलब इनकी बात हो रही है, देखो कोम रोज देख रहे हो नीचे डायग्राम में, कोम रोज है, दे आर 8 इन नंबर्स और इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, इसीलिए ने कोम जेलीज भी बोला है। और दो टेंटिकल्स निकल रहे हैं टेंटिकुलर शीथ में से, बाहर की तरफ बहुत लंबे लंबे से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। टेंटिकल्स, टू टेंटिकल्स इन टेंटिकल्स सरफेस बेयरिंग कोलोब्लास्ट, और इन टेंटिकल्स के ऊपर कोलोब्लास्ट सेल होते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि ये अपना शिकार पकड़ सकें। बॉडी वॉल बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस देयर इज ग्रेटिलिनस मसल शीथ, बॉडी सरफेस और एपिडर्मिस के बीच में सबसे बाहर वाली लेयर और सबसे अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में देयर आर ग्लिटिनियस मसल सेल्स होते हैं इनके बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फीडिंग, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों तरह से खाना खा सकती हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम,
जो है वो उसके अंदर माउथ, फेरिंग, स्टमक आता है, एंड अ सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, टू blind canals terminate near the mouth, and the oral canal that passes near the statocyst and then divided into two small cell canals through which undigested material is expressed. मतलब वही बात कहने की कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से खाना अंदर आता है तो वेस्ट एनस से बाहर जाता है. ओके, यहाँ पे मसल सेल्स अंडरलाइन द ectoderm and concentrated in the tentacles are area around the mouth and the surrounding arboreal end. यहाँ पे माउथ दिख रहा है आपको, इमेजेस दे रखे हैं. रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के बारे में बता रखा है कि रेस्पिरेशन अकर थ्रू बॉडी सरफेस, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनके अंदर सिर्फ बॉडी सरफेस से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू इनका रेस्पिरेशन हो जाएगा. इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होती. नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम क्या है? consisting of subepidermal plexus concentrated around mouth. This structure holds a stratoslit that sits on a four clumps of large sensory cilia. नर्वस सिस्टम में स्टैटोलिथ नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि बैठता है चार क्लम्स ऑफ लार्ज सेंसरी सीलिया के ऊपर होता है, एंड डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ कोम जेली, जो कोम जेली का आगे पीछे ऊपर नीचे बताती है, मतलब ओरिएंटेशन बताती है कोम जेली को कि कौन सी डायरेक्शन है, वो किस पोजीशन में है. एंड बीनीथ द कोम प्लेट रोज देयर आर मेंटेनिंग प्रॉपर वर्टिकल ओरिएंटेशन और चेंज स्विमिंग डायरेक्शन. उसके हिसाब से वो अपनी स्विमिंग डायरेक्शन बदल सकती है. इकोलॉजी क्या है? मतलब इनका रहने की जगह. कोम टीनोफोर्स मेकअप सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ प्लैंक्टन, ये भी प्लैंक्टन्स के मेंबर्स में आ जाती हैं. Famously, Tinophore Maniopsis, which was introduced into the Black Sea prior to 1980, proved to be major pest. वो pest बन गई, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी समुद्र में. The species feeds on zooplankton. ये species zooplankton को खाती हैं, including juvenile fish and their eggs. छोटी छोटी मछलियों को और उनके अंडों को भी खाती हैं कोनजेलीज, रिजल्टिंग इन ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ फिश पॉपुलेशन. इनकी वजह से फिश खत्म हो जाती है इन द रीजन, एंड अ बिग ecological damage. The fact of ctenophores, especially the type of in common members of plankton which had small size, few millimeter, and transparency make relatively inconspicuous, even though they're not uncommon. In general, they are little known. मतलब इनके बारे में भी कम जाना गया है. क्यूरियोसिटी क्या है? नेम टीनोफोर्स बिकम ग्रीक मींस कोम बियरर. टीनोफोर्स का मतलब है कोम बियरर. टीन का मतलब कोम होता है, फोर्थ मतलब बियरिंग, एंड टीनोफोर्स आर प्रोबेबली कॉमन मेंबर्स ऑफ द प्लैंक्टन इन मोस्ट कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में टीनोफोर्स ही सबसे ज़्यादा नंबर में जो हैं प्लैंक्टन्स को के मेंबर्स हैं. Ctenophores may be seasonally much more abundant in the spring and early summer. अर्ली समर में और स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा इनका नंबर बढ़ता है समुद्र में. Ctenophores are most composed of the water. मोस्टली कंपोस्ट है पानी के 95%. एंड comb jellies are the largest of all animals that utilize the beating of cilia for locomotion. ये सबसे बड़े वो ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया को यूज करते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इट डज नॉट स्टॉप देयर विद लेंथ अप टू 2 millimeter. Four cilia are the longest of any known. इनकी लेंथ 2 मिलीमीटर. टीनोफोर सीलिया सबसे लंबे हैं इनके. यहाँ पर ये है, वीडियो भी दिखा रखा है यहाँ पर, देखते हैं हम प्ले करके. Can you see? This is a Tinophore. It is showing cilias are shining and producing colors.
9th बी की है, किसने दिए? मैडम ने दी है, सारे 9th बी की। तो ये तो उसमें लग जाएगी। इनकी फाइल यहाँ रखी है, हाँ इनके साथ डालेंगे, उसमें डलवा दो। हाँ, बहुत ज़्यादा। 9th बी की है, कौन सी मैम ने करके दिए हैं? इन्होंने दिए, मानती मैम ने? तो अभी आपने इसमें देख लिया वीडियो, कोम जेलीस किस तरीके से शो हो रही थी। यहाँ पे स्पॉन्ज की लाइफ साइकिल का एक और इमेज दिखा रखा है। ये सेक्सुअली बडिंग से हो गई, यहाँ से एक बड टूटा स्पॉन्ज का, नई स्पॉन्ज ग्रो होने लग गई। एक मेल स्पॉन्ज ने स्पर्म्स भेजे, एग में जाके फर्टिलाइज हो जाएगा एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन से एक लार्वा बनेगा एंड लार्वा फ्री स्विमिंग होगा एंड प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके। सो इट इज शोन किस तरीके से। यस मैम। ठीक है, स्पॉन्जेस प्रोडक्शन कर रही हैं। लाइफ साइकिल ऑफ डेमो स्पॉन्ज, इट इज शोन adult, एक यहाँ पे दिखा रखा है सिंपल। मोस्ट स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट्स, मतलब दोनों सेल्स बना सकती हैं, गैमेट्स बना सकती हैं, एग बी और स्पर्म। ऐसे एनिमल्स जो दोनों गैमेट्स बनाते हैं उन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो मेल स्पॉन्ज होगी वो स्पर्म रिलीज कर रही है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोनोसाइट्स एंड देन द स्पर्म्स आर मूविंग इनटू द फीमेल स्पॉन्ज एंड वो एग से आके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। लार्वा बन रहा है, लार्वा रिलीज हो जा रहा है बाहर, और लार्वा फिर जब 2 दिन के बाद जब इतना बड़ा हो जाता है कि वो नई स्पॉन्ज में ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो थ्रू वाटर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वाटर एक्ट एज अ मीडियम जिससे गैमेट मेल स्पॉन्ज से निकल के फीमेल स्पॉन्ज में चला जाता है। The sponge's pumping does more than satisfy its hunger for food. In fact, its sex life depends on pumping as well. देखो ये Half a स्मोक billion जैसा years प्रोड्यूस कर ago, रहे हैं। these were the very first animals to reproduce sexually, the first to combine sperm and egg to create offspring. Set adrift, some sperm will be lucky enough to enter another sponge of the same species. If the sperm are truly fortunate, they will fertilize the eggs within. Our intimate tour of the sponge reveals a creature full of surprises. From feeding to reproduction, it engages in elaborate behavior. More than a mere aggregation of cells, the sponge is in fact a living, thriving animal. तो आपने देखा कि मेल स्पॉन्ज किस तरीके से स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग का मतलब स्पर्म के क्लाउड्स में अपने स्पर्म्स रिलीज कर रहा था, जो कि फीमेल में जाके फिर प्रोडक्शन करेंगे
एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी जाती है स्पॉन्ज में। इंटरनल बड्स प्रोड्यूस होती हैं जेम्यूल्स नाम की। जेम्यूल्स और स्मॉल कलेक्शन होते हैं सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के that are enclosed by protective covering, and this is an important survival mechanism in unfavorable condition where the adult may not survive, and the protected gemule can withstand harsh condition। मतलब जेम्यूल इनका एक प्रोटेक्टिव स्पोर जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगस स्पोर बनाते थे और एक हार्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है लाइफ, वैसा जेम्यूल भी है। जेम्यूल भी स्पोर्स बनाता है। जेम्यूल्स भी एक तरह का स्पोर जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पॉन्ज ने बनाया है। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है। सो दिस वाज आवर क्लास। अभी हमने स्पॉन्ज ही करा है और टीनोफोर्स और नाइडेरिया। एक बार हम नाइडेरिया की भी लाइफ साइकिल देखते हैं, क्योंकि नाइडेरिया की लाइफ साइकिल में पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज के इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दैट इज polyp can give rise to medusa and medusa can give rise to polyp in its life cycle. That means alternation of generation is seen in the nidaria. That is very important कि अल्टरनेशन, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में हमने देखी थी कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट हैप्लॉइड जिनकी प्लांट बॉडी होती थी वो स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, वो देखी थी। वैसे ही हमको देखने हैं कि नाइडेरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि पॉलिप कैसे मेड्यूसा को गिव राइज करता है और मेड्यूसा कैसे पॉलिप को गिव राइज करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज की इंस्टीट्यूट तो रोज कराची हमारा टॉपिक होगा। Sufficient form jellyfish eggs outside the water fertilization zygote form होता है extra digit. This zygote turn into planular larva. This is a typical characteristic of phylum Selentata. This planular larva settle to hard stratum and grow into a polyp form. This is known as alternation of generation in phylum Nidaria. Selentata. Alternation of generation in Nidaria. The planular larva is a typical characteristic of phylum Selentata. Grow into a new polyp form. Polyp form is a fixed. जेलीफिश की लाइफ साइकिल नेशनल ज्योग्राफिक ये सबसे बेस्ट होगा, इसको देख लो आप। Unbalanced oceans are open to invasion by strange life forms. They start life as pinhead-sized polyps. यानी कि ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ कैसे शुरू करते हैं जेलीफिशेस, पॉलिप फॉर्म से। मतलब इनकी पहला स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल का वो पॉलिप फॉर्म होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, पिन हेड जैसा। But what they lack in size, they make up for in numbers. ये साइज में बहुत छोटे होते हैं पर ये बहुत ज्यादा नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, तो वही ये बता रहे हैं। Gorging on tiny plankton. They grow, mutate, and multiply into an army of clones. यानी
यानी कि ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि ये आर्मी ऑफ क्लोन्स में बदल रहा है। मतलब ये बडिंग से हाइड्रा, आपने पता ही है आपको हाइड्रा की बडिंग होती है, बडिंग से ही अपने आप को पूरे उस पे रॉक पे कवर करता जा रहा है। अंडर वाटर एक रॉक है, उसके ऊपर ये पूरा फैला जा रहा है पॉलिप। Now each polyp becomes a production line with one purpose. अब इन्होंने एक मेड्यूसा फॉर्म को गिव राइज किया। पॉलिप ने फ्री लिविंग मेड्यूसा फॉर्म अपने अंदर से रिलीज कर दी। Creating new jellyfish. ठीक है, देखा आपने किस तरीके से हाइड्रा ने ही अपने अंदर से एक पार्ट को ब्रेक करके जेलीफिश को गिव राइज किया। Bodies that are 95% water can easily grow and grow until they are monsters. ये इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी ज्यादा बड़ी ग्रो हो जाती हैं जेलीफिशेस। No bones, no blood, not even brains, but perfectly suited to today's transforming seas. Resistant to increasing temperature, decreasing oxygen, changing salinity. कितने भी हार्श एनवायरनमेंट में रह सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा से ज़्यादा सैलिनिटी पे, किसी भी तरह के समुद्र में ही रह सकती हैं। Rising acidity, even plastic pollution. इवन प्लास्टिक पोल्यूशन को भी रेजिस्ट कर सकती हैं। Takes over. Some ecosystems never fully recover. और अगर जेलीफिशेस खत्म हो जाएं कहीं से, तो फिर इकोसिस्टम खराब हो जाते हैं पूरी तरह से। जेलीफिशेस इकोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने आराम से देखा जेलीफिश ने किस तरीके से गिव राइज किया। ठीक है, पॉलिप ने किस तरह से गिव राइज किया जेलीफिश। यहाँ पे ये टीचर भी बता रही हैं, इनको भी ध्यान से देख सकते हैं। क्या होता है, ये आपका एसेक्सुअल फेज। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज किसको अल्टरनेट करेगा? सेक्सुअल फेज। और सेक्सुअल फेज आपका एसेक्सुअल। यानी दूसरी भाषा में हम नॉर्मली सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट कर रहा है हैप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज अल्टरनेट कर रहा है डिप्लॉयड फेज। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या हो गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि प्लांट जैसे फर्न में मोसेस में होता है। यानी क्या होता है, मेटाट्रिक्साइड फेज जो होती है वो डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू हैप्लॉइड सेक्सुअल जनरेशन। क्योंकि मेटासेक्सुअल जनरेशन ट्रू हैप्लॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये हैप्लॉइड कॉलोनी क्या है? आपका डिप्लॉयड स्टेज होता है। और मेडुसा भी क्या है? आपका डिप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, और ये फिर फर्दर क्या करता है? मेल और फीमेल के स्पर्म को निकालता है, यानी हम इसको कहेंगे हैप्लॉइड। जबकि सेक्सुअल यानी कि हाइड्रॉइड फेज क्या है, या फिर हाइड्रा जो है, जो हाइड्रा है उससे क्या निकलेंगे? हाइड्रा क्या है? जो हाइड्रा क्या कर रहा है, अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? एक जेलीफिश रिलीज करेगा। दोनों ही पर डिप्लॉयड ही है, हाइड्रा भी डिप्लॉयड है, जेलीफिश भी डिप्लॉयड है।